Hello friends, how are you? So welcome to Code Curious YouTube channel. So today I am going to talk about BST, insert element into BST. So I have started actually Bani Search T lectures. So I have made one lecture actually. So please visit previous video. Okay, so in that video, actually, I've explained what is BST, all the properties, how insert and delete works. So most important video. So please visit first previous video, then comes to here. So let's start now. BST here. I'll do code also means for the inserting element into BST. So how it work actually? So just let's say you have some binary tree. In the beginning, you have some null. In the beginning, you have some null. Let's example you have some reference, node reference as a null, node root reference as a null. Okay. If you are passing a null reference for the root tree, so it means if you have to add because of you wanted to add new node into this tree actually is null tree only, don't have any reference address for any node actually for null reference. The root contains only null reference only. So it means if you are going to add any node into this tree, so because you don't have any node and any data in this, so you don't have to compare. just check just check this way. If root is equal to null, root is equal to null, it means I don't have to compare and call recursive call multiple things because I know like this tree doesn't contain anything for now. So let's add directly. So you can directly root, add a new node, any data that you wanted to add like 40. Okay, so let's create here 40. Now you have tree with one single node, and you wanted to add another node. So now you have to check actually क्या चेक करना पड़ेगा. You have to check, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी इंसर्ट करना चाह रहे हो. लेट्स से यू वांटेड टू इंसर्ट फंक्शन है आपके पास में. इंसर्ट कोई फंक्शन है जिसमें कि रूट आता है और कॉमा आपके पास में आता है सम डेटा, dt डेटा. ओके, इस तरीके से आपके पास में कोई है फंक्शन है, ये मान के चलते हैं. So in if root actually refers to null object, so you have to compare either root is equal to null, so you can directly add node. But actually because of this doesn't contain anything, you have to return also. Otherwise otherwise uh, root, if you assign, because of this is local variable, this is actually local variable, not this if you had some reference and you means let's say for example in this root you had already single node with 40. So then that cases you are passing actually here reference, some reference, on that reference only, on that node reference. But here you are not passing any node reference. If you are adding new node into a root, so it means it can directly refer to this variable, बिकॉज ये लोकल वेरिएबल है और ये जो नोड ऐड किया ये लोकल वेरिएबल में ऐड किया. ठीक है, अब आप अगर इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे नल ही मिलेगा, यू विल गेट नल ओनली. ओके, इस केस में आपको इन दिस केस यू हैव टू रिटर्न आल्सो. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिटर्न रूट. और रिटर्न जब करोगे तो ये जो भी फंक्शन कॉल किया होगा वहां पे वो असाइन भी करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिटर्न टाइप वाइड नहीं ले सकते हो आप. what you have to detect here, node type. Okay, this is single if condition.
अब आता है दूसरा केस, इफ, बिकॉज यहाँ पे आपने रिटर्न लगा दिया तो इल सिर्फ लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इफ यू कैन यूज है। अगर मान लो, लेट्स से इन you have added 40 data into this tree, it means this root contains single node, one node reference। अब ये जो रूट है, जो सिंगल वन नोड रेफरेंस कर, वन नोड का एड्रेस होल्ड करता है, 40 नोड का 40 वैल्यू। ओके, दिस नोड यू कैन एज्यूम। तो अब इफ यू आर गोइंग टू ऐड अनदर नोड इनटू दिस ट्री, so you have to check your BST property first। Let's say you have to add some 40 and 20 and 30 and 70 and 60 and 80 and 50, this way. These node you have to add in, means you wanted to create any BST with this data, with this data. So first you have, means you have added single 40 into root node. Root has contained in the previous beginning null only. So now refers to 40 refers to root only. ठीक, root 40 becomes root node only, root। Now you wanted to add 20. So while adding 20, you have to check BST property. Either 20 is lesser than this root data, because of 20, 20 becomes child for any node actually. So for the 20 means you have to check a parent, some parent node actually. So 20, if you wanted to add left side 20, so means 40 becomes will be a parent. So you have need to check BST property, either 20 is lesser than its parent or not, or 20 is lesser than its 40 or not. So if 20 is lesser than 40, so so it means you can add, you might add, not can, you might add actually, you might add 20 on the left side of 40, but it depends on either left child, already left child is there or not there, or there is left child for 40 or not, or there is right child already available for 40 or not, depends on that। Okay, but it will be left or right child only, either direct or indirect। Okay, so you have to check either this, you can, yeah, this data, you have to check this, either this data is lesser than root, जो भी है वाट एवर रूट डॉट डेटा, रूट के डेटा से क्या लेस देन है या नहीं है, यू हैव टू चेक। अगर ये नल होगा, ठीक है, रूट अगर नल होगा तो ये पहले से ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर रूट डॉट डेटा आप कर सकते हो, इट मीन्स यू नेवर गेट हियर रूट एज अ नल, ठीक है। तो आइदर यू आर चेकिंग आइदर डेटा इज लेसर देन रूट डॉट डेटा। अगर ऐसा है, इट मीन्स यू माइट add you might add left side of this no this data, left side of this root, left side of this root। so root जो आपका है, root के लेफ्ट साइड में आप ऐड कर सकते हो, बट ये गारंटी नहीं। अगर गारंटी होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट करके रूट जो हमारा है, वट एवर रूट डॉट डाटा, उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हम जेनिक लेते हैं समथिंग। सो रूट डॉट डेटा ओनली यू हैव टू डू रूट डॉट डाटा। ओके, सो डायरेक्टली
ठीक है। इफ it okay, if let's say if you could directly if you could directly add मीन्स अगर ये सॉरी मैं क्या कहने बता रहा था मैं भूल गया। हाँ, अगर आप ये जो डेटा है आपका, अगर आप ये डायरेक्टली लेफ्ट साइड में ऐड कर सकते, ठीक है, अगर आप कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बट एक्चुअली दिस इज देर इज नो गारंटी दिस इज डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ 40 और नॉट। it might be like 40 already have some value 30, and for before this 20 is left side of 30, it means this is left side of 40 also and 30 also. So instead of doing directly adding, what you have to do, you have to call again recursive function insert root dot, because of you already this here in this by this condition you have already you are already sure here, like this data will be inserted left side of root, this current root whatever root is there either 40 और 30, बट आप 100% श्योर हो कि ये जो डेटा है ये लेफ्ट साइड में ही जाएगा, चाहे उस समय ये जो रूट हो 40 हो या उस टाइम 30 हो, 30 के भी लेसर है, क्योंकि डेट दिस करंट डेटा एक्चुअली 20 वट एवर यू वांटेड टू insert, this will be inserted left side of this root. That's why I am calling I am inserting a root dot left means and insert root dot left dot data, क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं, बट इन दिस केस अगर देखो जाए इस इन द बिगिनिंग एज यू आर इन द बिगिनिंग हियर लेट्स राइट सम इन दिस बेस केस एक्चुअली यहाँ पे आपके पास सिर्फ 40 है, यू हैव ओनली 40 and you are going to insert 20, so and you in this if condition, inside this if condition you are have written this statement root dot left is equal to insert root dot left. Root dot left means you are passing here, root dot left means null, so when you pass null, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा रिकर्सिव कॉल आएगा, रूट बराबर नल है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेटा तो हमारा वही है 20 है, तो 20 से न्यू नोड क्रिएट करके रूट क्रिएट होगा, ये रिटर्न कर देगा रूट, यानी कि 20 नया नोड क्रिएट करके रिटर्न कर देगा, और वो जब रिटर्न करेगा तो एक स्टेप वापस आ जाएंगे हम, ठीक, कहाँ पे आ जाएंगे, इसी जगह पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट जो हमने किया है, तो रूट के लेफ्ट में ये जो नया नोड रिटर्न हुआ था उसका एड्रेस असाइन हो जाएगा, किसका एड्रेस, जो नोड नया नोड यहाँ पे क्रिएट किया था बिट वैल्यू 20, तो रिटर्न करेगा ये, इट विल रिटर्न 20 एंड 20 एड्रेस, नोड एड्रेस एक्चुअली रिटर्न करेगा, वो एड्रेस इस पर असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि अभी इसके आगे कुछ है नहीं, राइट साइड में जैसे ही यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया, यहाँ से रिटर्न होगा, तो ये क्या करेगा, रिकर्सिव बैक ट्रैक करने लगेगा, बैक ट्रैक करेगा वापस आएगा यहाँ से, क्योंकि अब राइट वाला कंडीशन तो चेक इल सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे हम, इफ लगाएंगे नहीं तो चेक भी नहीं करेगा, इफ दिस कंडीशन टू इफ इल सिर्फ अदरवाइज दूसरी कंडीशन ट्री होगी कौन सी, इल्स इफ, अदरवाइज हम इल्स भी लगा सकते हैं क्योंकि तीसरी कंडीशन कोई है नहीं हमारे पास, ठीक है। या लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इल्स इफ डेटा, क्योंकि डुप्लीकेट से एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ पे डुप्लीकेट का कोई ऑप्शन नहीं होता, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हम रखते हैं, ठीक है, बाइनरी ट्री में भी नहीं रखते, बाइनरी सर्च ट्री में भी नहीं रखते, इस वजह से आप यहाँ पे लगा सकते हो इल सिर्फ, क्योंकि इल से लगाओगे तो डुप्लीकेट वाला भी आप यहाँ पे केस हैंडल हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इल्स इफ इसीलिए लगा रहे हैं, इल्स इफ डेटा ग्रेटर देन रूट डॉट डेटा, अगर डेटा ग्रेटर देन डॉट डाटा,
लेट्स एज्यूम another case, you had to add 70. अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्चुअली आपने यहाँ पे 20 ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में डायरेक्टली इसके थ्रू। इलसिप में क्या होगा, रूट डॉट राइट इज इक्वल टू इन शर्ट रूट डॉट राइट कॉमा डाटा। ओके, ये इलसिप में कर दिया। अब एक चीज बताओ, ये वाली अगर कंडीशन ट्रू हुई थी उसके बेसिस पे आपने लेफ्ट में इंसर्ट करवा दिया। अब जब लेफ्ट में इंसर्ट करवा दिया तो लास्ट में आप, अब एक चीज बताना, आप कंप्लीटली रिटर्न क्या करवाओगे। यहाँ पे आप रूट डॉट राइट कर दिया, यहाँ पे आप लास्ट में जो रिटर्न करवाएंगे हम रिटर्न रूट करवा देंगे। ठीक है, इसको हम टेस्ट करेंगे कोड के थ्रू, तब पता चल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ये समझ लो, इस तरीके से हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे लास्ट में। तो अब हम चलो 20 हमारा कंप्लीट हो गया, हम 30 को ऐड करते हैं। वेरीफाई तो अभी हो जाएगा क्योंकि हम मैनुअल एक तरीके से इटरेशन कर ही रहे हैं। ठीक है, let's say you have to add 30. You wanted to insert another node data into this tree. So let's say I have 30 comes here, it is root, because root is not null because of root tree contains two having a tree with two nodes actually। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे, इफ रूट डाटा इज लेस देन, क्या हमारा जो 30 है लेस देन है रूट डॉट डेटा यानी कि 40 के, रूट डॉट डेटा, रूट अभी हमारे क्या है 40 है, तो रूट डॉट डेटा के लेस देन है या नहीं है, बिल्कुल ये लेस देन है, 30 लेस देन है 40 से। सो इसका क्या मतलब हुआ, आप यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सिव कॉल करोगे तो इंसर्ट यानी कि आपने क्या किया, चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं। पहले आपका जो फंक्शन कॉल हुआ था, आपके पास में रूट था आर और डेटा था आपके पास में 40। उसके लिए आपने यहाँ पे क्या किया, चेक किया और यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर दिया था। बट आपने जब दोबारा से 20 पास किया था, 20 के लिए एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट डबल इक्वल टू फंक्शन जो भी था आपका रूट डॉट लेफ्ट आपने कॉल किया था यहाँ पे। ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट मीन्स ये नल ही पास किया था आपने। ठीक है, नल कॉमा 20। तो इसकी वजह से जब ये फंक्शन कॉल हुआ था नल के साथ में और 20 के साथ में, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली 20 रिटर्न करवा दिया था। ठीक है, 20 न्यू एक तरीके से नोड क्रिएट करके 20 को यहाँ से रिटर्न करवा दिया था। तो ये जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, चूँकि ये रिटर्न होगा, जब ये यहाँ से कुछ भी रिटर्न होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 20 आ गया, यानी कि इसके लेफ्ट में 20 इंसर्ट कर दिया था। तो इस तरीके से ये हो गया था। ठीक है, अब इस केस में एक्चुअली 20 नहीं है, अब आप 30 ऐड कर रहे हो क्योंकि 20 ऐड हो चुका है, 30 आप ऐड कर रहे हो। सो चूँकि यहाँ पे 30 आप 30 ऐड कर रहे हो, चूँकि रूट इस समय हमारा 40 पे है, ये हमारा इस समय 40 पे है, तो 30 लेस देन 40 है, तो इसका मतलब आप लेफ्ट चाइल्ड कॉल करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब नल नहीं पास करोगे क्योंकि लेफ्ट में नल नहीं है, यानी कि लेफ्ट में 20 है, तो 20 पास करोगे। यहाँ पे अब 30 है तो 30 पास करोगे, नया फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे विद वैल्यू 20 एंड विद वैल्यू 30। ठीक, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली रिटर्न नहीं करवा सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से रूट डॉट लेफ्ट कॉल करोगे पहले, और लेफ्ट में फंक्शन कॉल करोगे। क्योंकि 20 के लेफ्ट में एक्चुअली नल है, तो अब यहाँ पे फिर से नल ही पास करोगे और 30 पास। जब नल पास करके 30 पास करेंगे, जिसका मतलब कि डायरेक्टली नोड न्यू नोड क्रिएट करेगा और वो वैल्यू 30 वैल्यू इंसर्ट करेगा और यहाँ पे रिटर्न करवा देगा नोड विद नोड एड्रेस हैविंग 30 वैल्यू। ठीक है, अब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे रूट जो आ रहा है वो 20 नोड डेटा, ये इस नोड का रेफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 20 के लेफ्ट यानी कि आर डॉट लेफ्ट यानी कि रूट ये है, ये रूट ही एक तरीके ये रूट ही है। तो क्योंकि हमने 20 इसलिए डाला जिससे कि इससे हम कंपेयर कर सकें। ठीक है,
तो इसका मतलब ये जो आर है, आर के लेफ्ट में यानी कि 20 के लेफ्ट में हम 30 को ऐड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये 30 है, दिस इज नॉट, एक्चुअली आप लेफ्ट कॉल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 30 इज नॉट लेसर देन 20, इट मीन्स यू हैव टू कॉल सेकंड, ये वाला आपको कंडीशन कॉल करना पड़ेगा, इल सिफ वाला। इल सिफ में जाएंगे आप और यहाँ पे आर डॉट राइट करेंगे इज इक्वल टू, और ये जो 20 के राइट में भी अगर आप कॉल करते हो तो 30, 20 के राइट में कॉल करोगे नल जाएगा तो नल 30, तो यानी कि राइट में आप 30 को पास करते हैं, यानी कि यहाँ पे। ठीक, लेफ्ट में नहीं कर सकते थे क्योंकि लेफ्ट वाला ये कॉल ही नहीं हुआ। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट कॉल ही नहीं हुआ, ये वाला स्टेटमेंट कॉल हुआ क्योंकि इससे कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी। ठीक, इस वजह से। तो यहाँ पे आप आर के राइट में यानी कि 20 के राइट में हम 30 को इंसर्ट कर सकते हैं और ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम इस यहाँ पे किसका एड्रेस रिटर्न करवाएंगे? यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे, क्या हमें 30 को रिटर्न कराना है या आर को रिटर्न कराना है? हमें आर को, यहाँ पे हमने रूट रिटर्न करवाया, यानी कि रूट इसमें क्या है 20 है, यानी कि हम 20 को ही रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक, जब हम 20 को रिटर्न करवाएंगे, यहाँ से रिटर्न करवाएंगे तो यहाँ पे 20 चला जाएगा, 20 लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो ही जाएगा, ऑलरेडी इंसर्टेड है ही, बट बैकट्रैक रिकर्सिव कॉल है, इस वजह से ये एड्रेस इसमें आर के लेफ्ट में असाइन हो जाएगा। यानी आर क्या है 40 है, 40 के लेफ्ट में 20 इंसर्ट हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी है ही इंसर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स यू हैव डन नाउ, यू हैव इंसर्टेड, मीन्स ये वाला जो है 30 आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक, इसी प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हो 70 के लिए। लेट्स से यू वांटेड टू इंसर्ट 70 इन दिस ट्री, so you have to check same, either 70 is 70 is less than 40 or not, because this is not less than, तो ये लेफ्ट वाला तो कॉल होगा ही नहीं, नंबर एक। तो आपको राइट वाला कॉल करना पड़ेगा। राइट में आप 20 और 70 पास करोगे, 70, 20 नहीं, ये रूट, ये जो आर है फर्स्ट ही स्टेटमेंट, फर्स्ट टाइम में ही। ठीक है, यहाँ पे आप पास कर रहे होगे 40 और 70, तो 40 70 इज नॉट लेस देन 40 यानी कि ग्रेटर देन 40, इट मीन्स आई कैन इंसर्ट दिस 70 लेफ्ट साइड ऑफ दिस रूट रूट नोड, आई कैन इंसर्ट दिस 70 राइट साइड ऑफ दैट नोड 40 नोड। ओके, I am assuming only कि I can insert, but either is true or not, I have to check by the code। तो यहाँ पे मैंने किया, ये डिपेंड करता है कि राइट 40 के राइट में कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो हम श्योरली डायरेक्टली कर देंगे अभी। तो चूंकि आर के राइट में हम इंसर्ट कर रहे हैं, फंक्शन कॉल करेंगे, सो राइट मतलब नल, यहाँ पे देखो नल आ जा रहा है, 40 के राइट में नल है, तो नल पास करोगे तो 70 नया नोड क्रिएट हो जाएगा, ओके रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नया नोड आएगा 70 वैल्यू के साथ में, तो उसका एड्रेस यहाँ पे राइट में इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे 70 इंसर्ट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद में आप आते हैं 60 पे। तो 60 आपको अगर इंसर्ट करना है, चलो 60 यू हैव टू इंसर्ट नाउ 60, so it means 60, either 60 is greater than 40 or not, yes 60 is greater than 40, so it means I might insert this 60 right side of this 40, but directly or indirectly, might be directly or indirectly also। indirectly मतलब हो सकता है राइट, जो 40 के डायरेक्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड हो ऑलरेडी से, तो डायरेक्ट राइट चाइल्ड तो नहीं बना सकते हैं, बट हाँ उसके आगे आगे ट्रेवर्स करेंगे, कहीं पे जगह मिलेगी वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे, आर राइट इक्वल टू फंक्शन कॉल किया विद वैल्यूज, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी राइट चाइल्ड, so 70 and 60 I wanted to insert here, so a new function will be called, recursive function will be called with 70 root node, and data I wanted to insert 60, so again you will check either 60 is greater than 70 or less than, because this is 60 is less than, it means I can insert left side of 70, 60 can be inserted
लेफ्ट साइड ऑफ 70। सो यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन कॉल करेंगे लेफ्ट, और 70 के लेफ्ट में नल है तो नल यहाँ पास करो, नया नोड 60 डेटा के साथ में क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये 60 आर के लेफ्ट, आर के समय क्या है 70 है, तो 70 के लेफ्ट में एक्चुअली यहाँ पे 70 के लेफ्ट में 60 ऐड हो जाएगा। और ये जो हमारा इस समय रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, ये रूट है 70, 70 रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो आर के राइट में 40 के राइट में इंसर्ट हो जाएगा, इस हिसाब से वेक्टर करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप 80 भी ऐड कर सकते हो। 80 में भी आप चेक करोगे क्या 80 लेफ्ट लेसर फ्रॉम 40 और ग्रेटर देन है, सो इट्स ग्रेटर देन, इट मीन्स आई हैव टू गो राइट साइड। Now compare with 80 with 70. Either 80 is greater than 70 or less than greater than. So you will go right side. Right side is for now is null. तो नया नोड क्रिएट करोगे और उसके लेफ्ट में इंसर्ट कर दोगे 80 वैल्यू के साथ में। तो आप यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करो, ये नया नोड क्रिएट हो गया राइट साइड में, और उसमें वैल्यू फिल कर दो 80। इसी प्रकार से आप 50 चेक करोगे, क्या 50 ग्रेटर देन 40 है? यस। Let's check here. Either 50 is greater than 70 or less than, yeah, it is lesser from 70. Go left. Let's check again. 50 less than 60 or greater than, less than. So go left, it is null. Create new node because this is null. So create new node, insert value 50. दिस वे यू कैन डू। बट यहाँ पे अगर देखो प्रॉपरली, ये सही प्रॉपर तरीके से बैलेंस तो है इस समय, अगर देखा जाए तो बैलेंस है, क्योंकि इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दो, राइट साइड में एक, यानी कि 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये इसकी लेफ्ट सप्टी देखोगे तो उसका भी 1 2 साइज इसका 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 2 3 1 2 3 3 आ जाएगा, 3 - 2 बराबर 1। तो इस प्रकार से ये बैलेंस टाइप है अभी, लेकिन फिर भी अभी प्रॉपर कंप्लीट बाइनरी टाइप की नहीं बनी हुई है, क्योंकि ये 50 एक्चुअली इंसर्ट किया जा सकता था, मैनेज किया जा सकता था इस तरीके से ट्री। ठीक, ये स्टार नोड एक तरीके से दिख रहा है मुझे। तो ये डिपेंड करता है देखो अगर एवियल ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी हमेशा कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री टाइप की बने। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोड किया जा सकता है। चलो चलते हैं, कोड करते हैं इसको और कंप्लीट करते हैं। ट्री में हम नया क्लास क्रिएट करते हैं, BST। अब चाहें तो इसको नोट बाहर भी बना सकते हो, आज हम बाहर बनाते हैं। ठीक, हमेशा इनर क्लास कोई ज़रूरी नहीं है। इन अरे नोड डाटा नोड राइट एंड क्रिएट कंस्ट्रक्टर या नोड int passing data to create new node. You can add the data is equal to data is equal to data. So this way node has been created. Now you have to create some main method and यहाँ पे एक्चुअली आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बट ये क्लास है आउटसाइड है। ठीक है, नोड जो क्लास है ये आउटसाइड है। I have some node, we have some beginning
In the beginning, I have some root referring to null tree. So now calling insert into insert. Comma data just take same only same array 40 20 30 70. लेट्स से यू हैव सम एरे, ठीक आपके पास में एरे है एंड सम एरेज डेटा सेम हम ले लेते हैं 40 20 30 70 40 20 30 70 60 80 80 60 80 लेट्स से आई हैव 10 इंस्टेड ऑफ 50, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एरे है एंड यू वांटेड टू इंसर्ट, तो यहाँ पे आप लूप में भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन create a loop for root int data double colon array this way and you can call this function। root तो कॉल करोगे ही और यहाँ पे डेटा भी पास कर दो। you wanted to add node one node in this tree with value data this data one by one this way and you are up to print also, so print for the print okay, for printing the data from the tree, okay, to prove either bst has been created or not, so I'll do in order traversal. In order traversal meaning you know already, in order, so it will be validated also, this tree will be validated by in order traversal, because while doing in order traversal in bst you will get result as sorted number, ठीक है। अगर आपको सॉर्टेड मिल जाता है तो इट मीन्स दिस इज फाइन। ये एरे सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल आपको ऑलरेडी पता है कैसे करते हैं। लेफ्ट इन ऑर्डर ट्रिवर्सल लेफ्ट कॉल कर दो और यहाँ पे सिस आउट कर दो और इन ऑर्डर ट्रिवर्सल कर दो डॉट राइट कर दो, ठीक। और यहाँ पे एक बेस कंडीशन तो लगानी ही पड़ेगी, आप यू कैन इसके भी रूट अगर बराबर नल है देन यू हैव टू रिटर्न। एंड फॉर इंसर्ट, इंसर्ट के लिए क्या चेक करना, बेस कंडीशन है इफ रूट बराबर नल मीन्स रिटर्न न्यू नोड विद डाटा। इफ ये डाटा इज लेस देन root dot data means you have to insert root dot left insert dot left, ठीक है। else if
डाटा जो है आपका, इफ दिस डाटा इज ग्रेटर देन रूट डॉट डेटा, it means you can insert that data right, means you can insert new node right side of that root node. But कॉल रिकर्सिव फॉर राइट, क्योंकि राइट में आपको चेक करना पड़ेगा कि नल मिलेगा तभी कर सकते हो ना। आप कहे कोई भी यहाँ पे मान लो ट्री है, आप ये आपको यहाँ इसके आगे कोई लेफ्ट राइट में कुछ इंसर्ट करना तो आप तभी कर सकते हो ना जब कहीं नल मिलेगा इसके राइट में। अगर मान लो आप इसके राइट में कुछ ऐड कर रहे थे 60, तो 60 तभी इंसर्ट होगा जब कहीं लेफ्ट या राइट चाइल्ड जो है नल मिलेगा, उसी नल की जगह आप वो वैल्यू ले सकता है, अदरवाइज आप हटा थोड़ी ना सकते हो किसी को। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे आप रिटर्न करवा दो रूट को। तो इसको रन कराते हैं, अगर सॉर्टेड मिल जाता है तो सही है, अदरवाइज सही नहीं है। ठीक है, 10 20 30 40 60 70 80, 50 गायब हो गया है, नहीं 50 था ही नहीं। 10 20 30 40 60 70 80, ठीक। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे सॉर्टेड आ गया, प्रूव हो गया कि नहीं। ये भी एक बेनिफिट है, बहुत इजीली आप अगर एक बार ऑलरेडी आपके पास में बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, तो अगर आपको सॉर्ट करना था तो एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तो इस तरीके से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके सॉर्ट करवा सकते हो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।